Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddin Uthmani, and I am basically a consultant physician, a gastroenterologist, and a pharmacologist. And I'm working as assistant professor, Khyber Medical College, Peshawar. And I have also worked as chairman, Department of Pharmacology, Khyber Medical College, Peshawar. जैसा कि आप सबको मालूम है, पहले 2-3 दिन पहले, बल्कि 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन द जनरल फार्माकोलॉजी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सारे टर्मिनोलॉजीज को याद रखना। लेकिन वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में और मैसेजेस में ये कहा कि सर आप इसको थोड़ा सा छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इसको दोबारा अपलोड कर लें। सो दैट इज़ अ वेरी लेंथी वीडियो, एंड दैट वीडियो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके साथ कुछ एडिशनल डिफिनीशन भी है, यानी वही की वही वीडियो नहीं है, उसमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी शामिल किया हुआ है, कुछ और डिफिनीशन भी मैंने शामिल किया हुआ है। सो टुडे दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वीडियो. The learning objective for today's lecture is define pharmacology, describe the basic concept of pharmacology, describe the different branches of pharmacology, describe the drugs, and describe other terminologies which are related to the pharmacology. So these are very important because being a student of pharmacology, इनके साथ आपका बार बार वास्ता पड़ता है. You will have to repeat these words again and again. So what is pharmacology? Pharmacology is the study of drug. Simply अगर आप ये कह दें कि pharmacology is the study of drug, its effect on the human body and other living tissue, that's okay, that's fine. ये definition हमें acceptable है. फिर उसके बाद दूसरा question है जो आपसे पूछा जाएगा कि what is drug? So drug is a chemical substance which produce some physiological effect in the human body or which can reverse some of the pathological process in the human body or in the other living tissue. इतना अगर आपके कंसेप्ट इस चीज़ के बारे में क्लियर है, सो दैट इज़ मोर देन इनफ. बुकिश डिफिनीशन में शायद कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें एडिशन है, लेकिन आपके जहन में यही दो चीज़ें याद आनी चाहिए कि what is pharmacology? The study of drugs. And what is drug? It is a chemical substance which produce action on the human body, either change the physiological process or it may reverse some of the pathological process. ठीक है? So pharmacology is the branch of medical sciences which deal with the study of chemical substance. So these chemical substances, they are basically the drugs that interact with the living system through chemical process. Binding occurs with the regulatory molecules and produce beneficial or harmful effect. Most of the time the drugs they bind with the regulatory molecules, और उन regulatory molecules को हम क्या कहते हैं? Receptor कहते हैं. ठीक है? They either increase or decrease the physiological activity. Yes, these drugs will either increase the physiological activity or decrease the physiological activity. Like suppose we have adrenaline. So when adrenaline is bind with the beta receptor of the heart, it increases the heart rate. There is normal heart rate, but that normal physiological activity get increased when adrenaline bind with the beta receptor in the heart. Again, there are some chemical substances like the beta blockers. When these beta blockers they bind with the receptors, with the beta receptor, they will decrease the heart rate. So what happen? They will either increase or decrease the physiological activity. They can stop the pathological process. Like suppose we are using the drugs as anti-cancer drugs. We are using the drugs for infection. We are using the drugs for the diabetes. We are using the drugs for diuresis. So all these things, they just modulate those pathological process which has caused disease in the human body. And they can kill the microorganism, and they can also kill the cancer cell. Again, the cancer cell, the drug will have to bind with a particular receptor on the cell surface. It will have to go inside, it will have to bring out some changes within the cell, and then it will have to kill that cells. ठीक है? So इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, और इसको हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंस ड्रग, और इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी मॉलिक्यूल. सो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स. ओके, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं. बेसिकली जो हिस्ट्री है 20th सेंचुरी से पहले वो तकरीबन सारी की सारी सेम है. ठीक है? देयर वाज नो प्रॉपर साइंस, देयर वाज नो प्रॉपर मेडिकेशन. जो चीज़ किसी के जहन में आता था कि ये उसके लिए बेनिफिशियल है, तो वही चीज़ उसको अप्लाई करता था. अनलकीली सम ऑफ दोज प्रोसीजर आर स्टिल they are in use in our villages and in those people where there is educational status is not that much improved. वहाँ इलाकों में, उन इलाकों में अब भी वो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कॉमन है. लेकिन अब जो मॉडर्न मेडिसिन है, दिस इज totally based on the scientific research. So before the 18th century, they used to apply anything they considered to be beneficial for them on wound in different part of the body, but most of the time it turned out to be harmful. वो कहते थे कि ये हमारे लिए beneficial है, लेकिन अक्सर वो harmful होता था.
Some used to apply the salve यानी the ointment the whip on the weapon that caused the wound. इतनी जहालत थी कि कुछ लोग उन तलवारों पे और उन मुख्तलिफ किस्म के औजार पे जिसकी वजह से इंजरीज हो जाती थी उनके ऊपर मरहम लगाते थे कि ये आप इसके ऊपर मरहम लगाएंगे उसको रखेंगे तब तक ये ज़ख़म आसानी से ठीक हो जाएगा। 18th और 19th सेंचुरी में भी लोगों ने क्रूड केमिकल्स और इन किस्म की चीज़ें जो प्लांट्स थी और एनिमल सोर्सेज से आती थी दे हैव स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स, लेकिन उनका भी कोई बेसिक कंसेप्ट उनके बारे में पता नहीं था। 20th सेंचुरी में बाकी जो सब्जेक्ट थे लाइक केमिस्ट्री, लाइक ह्यूमन बायोलॉजी, एनाटॉमी, उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनमें तरक्की आना शुरू हो गई और सिमिलरली मेडिकल फील्ड और फार्माकोलॉजी में भी चेंजेस आना शुरू हो गई। और लास्ट 40 ईयर्स दे आर जस्ट मार्वलस, दे आर जस्ट फैंटास्टिक। इसमें साइंस ने और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग ने, इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इसी तरह मेडिसिन ने भी बहुत तरक्की की है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, रिसेप्टर डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी, इट हैज़ टोटली रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ फार्माकोलॉजी इन द लास्ट 40 years. Now coming to the drug discovery. Remember drug discovery के दो मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट या कोई रिसर्चर एक केमिकल बनाते हैं और वही केमिकल्स दे गिव दैट केमिकल टू द फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी उससे फिर एक ड्रग बनाते हैं। फिर वो ड्रग्स ट्रायल्स में आ जाते हैं, पहले एनिमल पर उसकी ट्रायल्स होती हैं, फिर ह्यूमन पर ट्रायल्स, उसकी सेफ्टी की ट्रायल्स होती है, आखिर में फिर इसकी एफिकेसी की ट्रायल्स में होती हैं और फिर वो ड्रग्स फिर मार्केट में वो लॉन्च करते हैं और फिर मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसका एक फार्माकोविजिलेंस होता है और वो ड्रग्स 2-3 साल के लिए पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल या पोस्ट मार्केटिंग उसकी सर्वेलेंस होती है, ठीक है। तो उसके बाद आखिर में लोग कहते हैं कि नाउ दिस ड्रग हैज़ गॉट अ गुड एफिकेसी और दिस ड्रग हैज़ गॉट बैड एफिकेसी, दिस हैज़ गॉट नो एडवर्स इफेक्ट, दिस ड्रग हैज़ गॉट मोर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। सो जिनकी एफिकेसी अच्छी हो और एडवर्स इफेक्ट कम हो वो ड्रग मार्केट में फिर कंटिन्यू करता है, जिनकी एफिकेसी कम हो और जिनके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो फिर वो ड्रग दोबारा मार्केट से विड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विच एक्सप्लोर द न्यू टारगेट एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच डेवलप द ड्रग फॉर द क्लिनिकल यूज, ठीक है, उसी टारगेट से फिर वो ड्रग्स बनाते हैं। रिमेंबर 2 थिंग्स, जितनी भी केमिकल्स है ख्वाह वो फार्मास्यूटिकल बनाते हैं, ख्वाह वो साइंटिफिक तरीके से है, ख्वाह वो नेचुरल है, ख्वाह वो हकीम की दवाई है, all of them have got some sort of adverse effect, ठीक है ना। And the other thing has got all the chemicals may have some toxicity including those coming from herbs and animal sources। और जो दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कोई दवाई बनाते हैं, ख्वाह वो केमिकल्स है, ख्वाह वो फूड सप्लीमेंट है, ख्वाह जो भी है, it will have to pass through some specific steps before it is given to the patient, ठीक है। So all the drugs in dietary supplement will have to achieve the same standard, efficacy and safety before using it for the patient, ठीक है। Okay, now coming to some other definition, one is called the medical pharmacology and the other one is the toxicology. So medical pharmacology is that portion of the pharmacology which is deal with the prevention of disease, which is deal with the diagnosis of disease, which is deal with the treatment of disease. While the toxicology is basically related with the harmful effect of the drugs on the ecosystem in human body, उसके साथ जो related चीज़ें उसको हम toxicology कहते हैं, ठीक है। The branch of pharmacology which deal with the study of chemical substance used in the prevention, diagnosis and treatment of a disease, and toxicology is the branch of pharmacology which deal with the undesirable effect of the chemical substances on the living things and ecosystem, ठीक है। जो भी chemical substance होते हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ख्वाह वो साइंटिस्ट बनाते हैं, लेबॉर्ट्री बनाते हैं, जहाँ से भी आते हैं, नेचुरल सोर्स से, उनके दो वो देखते हैं कि इसका एक इंसान पे क्या इफेक्ट है और इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है। अगर इंसान का इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है सो वी मेक दैट एज अ मेडिसिन, ठीक है। अगर इंसान के लिए उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है सो वी कंसिडर दैट एज अ पॉइजन, ठीक है। इसी तरह वो केमिकल अगर एनवायरनमेंट में है सो एनवायरनमेंट में जब वो दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए नबातात और जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के लिए अगर वो डेंजरस हो सो वी कैन से दैट दिस थिंग हैज़ गॉट मोर टॉक्सिक इफेक्ट फॉर द इकोसिस्टम एंड वी कंसिडर दैट एज अ पॉइजन, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, ड्रग्स के बहुत सारे फिर डिफिनीशन है WHO के वगैरह वगैरह के नो, लेकिन सिंपल डिफिनीशन उसका ये है कि ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच आइदर मॉडिफाई द फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। जो अगर जिस तरह मैंने पहले बीटा ब्लॉकर्स और एड्रेनलिन का एग्जांपल दिया वही सेम चीज़ है, ठीक है।
According to the WHO, a drug may be any substance or product that is used to explore or modify either the physiological or pathological state of the living things for the benefits of the recipient. So any chemical substance which either change the physiological process of the living tissue or change or reverse the pathological process in that living tissue, we consider that as a drug. ठीक है, ड्रग की फिर बहुत सारी किस्में हैं. वन इज एक्टिव ड्रग वो होता है कि जो बाहर कंपनी से जो जिस तरह बनती है उसी तरह वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जैसे आप लेते हैं इट स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, so that is called active drug which does not need activation for therapeutic action. एंड प्रो ड्रग वो होती है कि वो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी जो टैबलेट्स आप लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं. वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वहाँ पे आपका लीवर या आपकी किडनी या आपकी जो और बॉडी ऑर्गन्स है वो उसमें केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेस उसमें लेके आते हैं एंड दे एक्टिवेट दैट इनटू एन एक्टिव ड्रग्स. So a prodrug is a drug which is activated in the body for therapeutic action, like levodopa. Levodopa is converted into the dopamine. Dopamine is active, while levodopa is a prodrug. Diazepam is a prodrug. In जो इसका जो active form है वो oxyzi form है. Now what is vaccine? Vaccine are also the drugs. Remember, ये सवाल वाई में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या vaccine drug है? Yes, vaccine is a drug which is used for the prevention of disease. ठीक है? What is poison? Poison is any chemical substance which is harmful for the living tissue, living organism and ecosystem. We call that as a poison. ठीक है, पैरासेल्सिस ये एक मशहूर साइंटिस्ट है जो कहते थे कि दिस इज द डोज विच मेक द पॉइजन. ठीक है, द डोज मेक्स द पॉइजन. वो क्यों? जिस तरह पैरासीटामोल है, नॉर्मली इट्स टैबलेट्स, वी टेक इट फॉर हेडेक एंड फॉर फीवर एंड फॉर सो मेनी पर्पस. But if you take a high dose of paracetamol, then that paracetamol become a poison. ठीक है ना. इस तरह टॉक्सिन एक और वर्ड है. These are also the poison which coming from the biological origin, like from the plants and from the animals. We call that as a toxin. Antidote, anything which is used to reverse the action of the poison, we call that as an antidote. And फार्माकोविजिलेंस ये रिलेटिवली एक नई फील्ड है, बल्कि बहुत पुराने वक्त से भी ये यूज़ हो रहा है. दिस इज़ द कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ए ड्रग. ठीक है, उसके लिए जब आप ड्रग्स को मॉनिटर करते हैं, उसका डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर वही डेटा को रिपोर्ट करते हैं, सो इसको हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस. इट्स डील विद द आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग. Okay, I will recommend all of you to watch these 3 video, one on the pain, pus and poison. ये BBC की एक सीरीज़ है 3 वीडियो के, बहुत ही बेहतरीन है and you will really enjoy. ठीक है, इसमें फार्माकोलॉजी की एक पूरी हिस्ट्री लिखी है, बयान की हुई है कि किस तरह पेन, पस और पॉइजन से किस तरह ये नए ड्रग्स की डेवलपमेंट हुई है और किस तरह फार्माकोलॉजी वजूद में आई है. और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू विजिट माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो मैं आपको लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाता हूँ, अगर आप लेक्चर को मिस भी कर ले तो वही वीडियो आपके लिए मैं छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करता हूँ. ठीक है, सो मस्ट विजिट दीज चैनल्स. फार्मा मेडिका, ये इज एक्सक्लूसिवली फॉर द फार्मा एंड मेडिसिन, और डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी के नाम पे भी चैनल्स है. ये भी इसमें वायरस, न्यू वायरल रिलेटेड और इन्फ्लुएंजा रिलेटेड और जो भी नई एक कोई बीमारी हो, नई कोई मेडिसिन हो, नई कोई तरीक़ेकार हो, इसके अलावा इसमें मेरे अपनी व्लॉग्स भी शामिल हैं, तो वो मैं आपके लिए इस पर मैं अपलोड करता हूँ. ठीक है, सो मस्ट विजिट दीज 2 चैनल्स and subscribe it and share all these video with your colleagues. खासकर अगर आपके किसी और मेडिकल कॉलेज में आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर लें. and I am really much thankful to all of you. Hope to see you in the next video. Thank you very much. God bless you all.